Hello, I'm Dr. Shivam Pandya, surgical oncologist at GCRA Ahmedabad, and today I'll be talking about techniques of studying. हमारे में एक कहावत है या मेटाफर बोल सकते हैं कि गधे मत बनो, घोड़े बनो, वर्क स्मार्ट, डोंट जस्ट वर्क हार्ड. बहुत सारे फंडे घूमते हैं. What I'll be trying to do here is to break this down and give some tips from my own experience about how to study more efficiently. So आगे शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा. ये स्टोरी एक जापानीज स्टूडेंट की है जो यूएस गया. ही नीडेड सम क्विक मनी, so he took part in a hot dog eating competition. The rule was कि आपको 12 मिनट में मैक्सिमम हॉट डॉग्स खाने हैं. ओके, सो बिफोर ही वेंट द रिकॉर्ड वॉज समथिंग लाइक 15-16 हॉट डॉग्स इन 12 मिनट्स. जो सब पार्टिसिपेंट्स थे दे वर ह्यूज बिकॉज यू हैव टू बी अ फूडी टू विन दिस कंपटीशन. ये जो स्टूडेंट गया बेचारा एकदम पतला, वेइंग 30 kg 40 kg. सो ही वेंट एंड ही स्मोक्ड द कंपटीशन. वो 12 मिनट में 60 हॉट डॉग्स खा गया. सो हाउ डिड ही डू इट? व्हाट एवरीबडी एल्स वाज डूइंग कि वो एक हॉट डॉग को ज़्यादा फास्ट खाए जा रहे थे. ठीक है, like they were trying to eat as many hot dogs as possible in 12 minutes, which was the competition. This guy looked at the problem in a different way, and he thought, instead of focusing on how many hot dogs can I eat in 12 minutes, let's see how fast can I eat one hot dog. Okay, you see the difference in perception here. सो उसने क्या किया, जो हॉट डॉग बेसिकली क्या होता है, एक सॉसेज है, उसके ऊपर वो ब्रेड लगाते हैं एंड यू हैव सम सॉस एंड समथिंग लाइक दैट, यू कैन हैव सम बेवरेज. सो उसने पूरे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया. द सॉसेज होता है ना, इट इज़ अ बिट स्लिपरी, सो ही स्वॉलोड इट. द ब्रेड ही डिप्ड इन वाटर, ही आस्क्ड इन बेवरेज, ही आस्क्ड फॉर वार्म वाटर, सो ही डिप्ड इन वाटर एंड ही स्वॉलोड द ब्रेड. और उस तरह से ही learned to eat one hot dog faster, and like that he absolutely broke the record. He held that record for 3 years in a row. So this story literally changed my life, क्योंकि मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी, I had just given my NEET PG first attempt 2012 और मेरा रैंक नहीं आया था अच्छा. And after I read this, I actually realized that, oh my God, I'm looking at the problem in the wrong way. Our course, हमारा जो कोर्स होता है, it's like a buffet. It's like an all you can eat buffet. आप कोई शादी में जाओ या कोई थाली रेस्टोरेंट में जाओ, you have so many varieties. You have 20 items, 30 items, 40 items. और आपको ये सब अगर खाना है तो you need a strategy. You just cannot just go in and barge and just start eating. You need a strategy, and that strategy is planning. So let us see. As I said, पहली चीज़ याद रखनी है, your course is like a buffet. You have to treat it like one. Okay. Now one of the first things that I do when I start my studying is to gauge the size of the course. कोर्स कितना बड़ा है और मेरा कितना कैपेसिटी है. सो कोर्स का साइज एक बार देखो एंड जस्ट बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. देखो, एक बात है, तुम पूरी दुनिया को चीट कर सकते हो, खुद को नहीं. बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. हाउ गुड आर यू, हाउ फास्ट कैन यू रीड, वॉट इज़ योर मेमोरी रिटेंशन. मेरे केस में आई हैव अ प्रॉब्लम विद मगिंग अप. मुझे फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं, राइट. So I have a problem with that. So I was very honest about it, that okay, I cannot do this. What to do? So before starting, there is something called SWOT analysis, SWOT. A SWOT analysis is strength,
वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सो यहाँ पे आप खुद का एनालिसिस एकदम ऑनेस्टली करना है, that what are your strengths, what are your weaknesses, where you can improve, that's opportunities, and where you can fall down, they are your threats. किसी को अगर सोशल मीडिया का एक्सेसिव एडिक्शन है, दैट्स अ थ्रेट फॉर देयर प्रिपरेशन. किसी को अगर एक्सेसिव डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है, दैट्स अ थ्रेट फॉर देयर प्रिपरेशन. These threats are actually can be used as an opportunity to improve yourself, right? So be very honest with yourself. Another point which I learned is you have to play to your strengths and you have to play around your weaknesses. अगर आपने किसी ने कोटा फैक्ट्री देखा हो फर्स्ट सीजन, उसमें देर इज दिस एपिसोड ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, जहाँ पे जीतू भैया बोलते हैं कि ओके देर आर सम थिंग्स यू कैन नॉट मास्टर, सो जस्ट ड्रॉप इट. सुनने में बहुत रेडिकल लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स अ फैक्ट. There are some things that you cannot master. Remember, it's a buffet. You cannot eat all 40 items, right? आप सब कुछ नहीं खा सकते हो, otherwise indigestion हो जाएगा, right? You cannot do that. So it's a buffet. You cannot eat everything. Similarly, the course, you cannot master everything. You can be very good at what you're good at, and you can be average to above average in what you're bad at. दैट्स इम्प्रूवमेंट. जो एफर्ट आपको आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में लगेगा, उतने एफर्ट में आप आपके स्ट्रेंथ को और कहीं स्ट्रांग बना सकते हो. सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ, प्ले अराउंड योर वीकनेसेस. आपके जो कुछ टॉपिक्स ना, अभी वीकनेस क्या होते हैं, इट कैन बी अ टॉपिक. देर आर सम टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल मुझे आई वॉज वेरी बैड एट ऑब्स्टेटिक्स, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी. सो बैड कि मैंने सोच लिया था कि मैं कहीं भी एडमिशन लूँगा, बट आई कैन नॉट टेक ऑन OBGY बिकॉज दोज कॉन्सेप्ट्स डू नॉट एंटर माई माइंड. ठीक है, देर आर सम थिंग्स दैट यू नो लाइक दे डोंट वर्क. सो फॉर मी ऑब्स वॉज वन ऑफ देम, बायोकेम वॉज वन ऑफ देम. ठीक है, सो मैं अगर मेरे ऑब्स को और स्ट्रॉन्ग करने जाता, लाइक मुझे इस चीज़ को एकदम अच्छा करना है, उसमें देर वर टॉपिक्स एट विच आई वॉज गुड, वो मेरा नीचे हो जाता. मैं ये भी अब अच्छे से नहीं करता, और जो मेरा अच्छा है वो भी मेरा नीचे हो जाता. सो ईगो पे बहुत बार लोग ईगो पे ले लेते हैं, दैट ऐसा कैसे मुझे नहीं आएगा, आई हैव टू बी गुड एट दिस. यू डोंट नीड टू बी गुड एट एवरीथिंग. यू नीड टू क्लियर दैट एग्जाम, be it an MCQ exam or be it a theory based exam. You have to clear that exam. You don't need to be an expert at everything, right? So if you're good at something, be very good at it, so that उसमें से कुछ आए तो वो आपका मिस ना हो. Okay, now how to go about your reading. So another story, ये मैंने पढ़ा था 7 Habits of Highly Effective Teens when I was a teenager, and it was a very good story. कहानी क्या थी? कहानी नहीं था, it was more of an exercise that you are given a bucket and you are given a bunch of stones and you have to fill the bucket with the stones. Now there are two types of stones. There are big stones and then there are small stones. So how will you go about it? There are two options. You either start with the small stones, पहले सारे छोटे पत्थर अंदर डाल दो और उसके ऊपर फिर बड़े पत्थर डालो, or you can start with the big stones. Now think what will happen. If you start with the small stones, they will occupy the space और वो तुम्हारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे. उसके ऊपर अगर आप बड़े पत्थर डालोगे वो पत्थर सब कवर नहीं होंगे. बट इफ़ यू फिल इन द बिग स्टोन्स फर्स्ट, उसके बीच का जो गैप है ना, उसमें वो छोटे छोटे पत्थर फिट हो जाएंगे. वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज द सेम, your approach is different. Always remember, it's the approach that changes things. Similarly, when you start studying, identify the two sets of topics. They can either be a big topic or a small topic. आपके लिए जो है, okay? So एक बड़ा टॉपिक है, उसको पहले ख़त्म करना है. The small topic you can actually pair with it. So what I used to do is something called a paired studying. एक बड़े टॉपिक को एक छोटे टॉपिक के साथ पेयर कर देना है, एंड यू हैव टू रीड देम टुगेदर.
सो दैट एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, दिस विल मेक ब्लॉक्स ऑफ रीडिंग. वो जो ब्लॉक्स है ना, वो आपको ख़त्म करना है एक के बाद एक. ओके, सो दैट्स पेयर्ड रीडिंग. रीड इन ब्लॉक्स. क्रोनोलॉजिकली या चैप्टर वाइज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज टेक्स्ट बुक्स आर नॉट रिटन क्रोनोलॉजिकली. वी आर नॉट इन स्कूल एनी मोर. सो रीड लाइक दिस. ब्लॉक्स में पढ़ बना बना के पढ़िए. अनदर थिंग इज समथिंग कॉल्ड अ साइमल्टेनियस रिविजन. हमारे पास बहुत बार पढ़ाई का टाइम नहीं होता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन मेडिकल स्कूल, यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज समथिंग कॉल्ड साइमल्टेनियस रिविजन. When you are reading, like as I said, make blocks. So block A, I would give it like 10 days. Say for example, I would give it 10 days. When I would start block B, while reading block B, I would give 2 hours per day to the topics of block A. मतलब अगर मैं रोज का 8 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 hours will be dedicated to my previous topic and 6 hours to the current topic. When I would move on to the third block, again 2 hours will be dedicated to the previous topic, 6 hours to the current topic. इसका क्या होगा? By the time you finish off your first reading, आपका already एक revision हो गया है. And then you start with the revision. And now this brings me to the most important part. हर पढ़ाई का, हर एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे important हिस्सा होता है revision. And your revision has to be perfect. और ये रिविजन का फाउंडेशन, ये रिवीजन का नींव रखता है आपका फर्स्ट रीडिंग. सो हाउ टू गो अबाउट इट? रिमेंबर व्हाट वी स्टार्टेड विथ स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो एंड फाइट देम आउट इन योर रिवीजन. कैसे? सो एज आई सेड, आई कैन नॉट मग अप फैक्ट्स. सो मैं क्या करता था, हर जो टॉपिक है, हर टॉपिक के ऊपर एक हेडिंग होता है और पेज के ऊपर एक थोड़ा ब्लैंक स्पेस होता है ऊपर नीचे. सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द MCQ एग्जाम्स, व्हाट आई वुड डू, आई वुड जस्ट जॉट आउट ऑल द MCQ रिलेटेड पॉइंट्स एट द टॉप. जो फैक्ट्स है, जो मगअप करना है, वो जो फैक्ट्स है ना, ड्यूरिंग माई फर्स्ट रीडिंग वो फैक्ट्स होते थे पेज के टॉप पे. स्टिकी नोट्स लगा दिया या वो पेन से लिख दिया है, कैसे भी करके, या फिर वो जो जो टॉपिक है उसके हेडिंग के साइड में. So when I'm revising, I will first of all go through these facts and then I will read the topic. Okay, and when I'm through my second or my third revision, I will actually just need to read those headings and I'll be done. So this is how I used to prepare for NEET PG, NEET SS, MS finals, MCH finals, all these exams. So your first reading actually decides your revision. Okay, so this is for the first video. In the next video, I will be discussing about how to revise effectively, what to do 1 week before the exam, 1 day before the exam, and on the day of the exam. The last week of the exam is a make or break, and we will learn how to deal with it in the next video. Thank you. See you. I hope you find this useful. If you find this useful, please share with your friends. ये एकदम ही जनरल टॉक था, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, सबके लिए है. सो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल. थैंक यू.